Ladies and gentlemen, the chief guest for today's event have arrived inside the hall. Let's welcome him with a standing ovation and a thunderous round of applause. Chief guest, Mr. Ramnath Thakur, Honorable Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Can we have a more energetic and a louder round of applause? Thank you very much for gracing this occasion with your presence. We request you to kindly light the ceremonial lamp along with our esteemed dignitaries, Dr. Praveen Kumar Singh, Mr. Franklin L. Khobang, Mr. Amit Vatsayan, Mr. N.K. Agarwal, Mr. Jaydev R. Shroff, Mr. D.S. Rajora. With this, we light the ceremonial lamp. Can we have another round of applause, ladies and gentlemen? Thank you very much. I request the dignitaries to come together for a group photograph. I now request the esteemed dignitaries to kindly be seated on the stage. And ladies and gentlemen, let's once again welcome on stage our chief guest, Mr. Ramnath Thakur, Honorable Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. We also have with us Dr. Praveen Kumar Singh, Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. And as they get seated on stage, can we once again welcome them on stage, ladies and gentlemen, with an energetic round of applause. We have with us Mr. Franklin L. Khobang, Joint Secretary, NRM, RFS, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Mr. Amit Vatsayan, Partner and Leader, Social and Skills Sector, Ernst & Young Global Limited. Mr. N.K. Agarwal, Co-Chairman, Agri Inputs and Farming Practice Council, ASSOCHAM, and Chairman, Crystal Crop Protection Limited. We also have with us Mr. Jaydev R. Shroff, Chairman, Agri Inputs and Farming Practice Council, ASSOCHAM and Global CEO, UPL Limited. Mr. D.S. Rajora, Assistant Secretary General, ASSOCHAM. And now we'll now take this opportunity to formally welcome our distinguished dignitaries on stage. I request Mr. Jaydev R. Shroff to please welcome our chief guest, Mr. Ramnath Thakur, Honorable Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. So we are truly honored to have you amongst us. Thank you very much for your gracious presence. I now request Mr. N.K. Agarwal to please welcome Dr. Praveen Kumar Singh, Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Let's together welcome Dr. Praveen Kumar Singh. I once again request Mr. N.K. Agarwal to please welcome Mr. Franklin L. Khobang, Joint Secretary, NRM, RFS, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. A very warm welcome to you, a very hearty welcome to you, sir. Thank you, Mr. Agarwal, for doing the honors. Thank you very much. Distinguished invitees, assembled delegates, ladies and gentlemen, on behalf of ASSOCHAM, I extend a very warm welcome to all present here to the National Conference on Climate Resilient Farming Solutions, Food Security to Fuel Security. Today, we will explore innovative approaches in agriculture to address the pressing challenges of climate change and sustainable food production while aiming to achieve energy security. This conference brings together industry leaders, policy makers, and experts from across the globe to share insights and develop strategies that will help shape a sustainable future for farming and fuel production.
And to begin this important session, I now invite Mr. Jaydev Shroff, Chairman, Agri Inputs and Farming Practice Council, ASSOCHAM, and Global CEO, UPI Limited, to deliver the welcome address. Let's all welcome him on the dais. Thank you very much. Good morning, Namaskar. Honorable Shri Ramnath Thakur ji, Minister of State for Agriculture, Dr. P.K. Singh, Agriculture Production Commissioner, Government of India, Shri Franklin ji, Joint Secretary, Agriculture, my colleague Mr. Agarwal, I don't know if Deepak is here, from ASSOCHAM, and Amit from ENY. Food security is completely dependent on farmer resilience, and farmer resilience is becoming more and more important in countries like India, where food production is one of the most critical agendas for the government, because 40% of our population is dependent on agriculture as their primary income. With such a lot of dependence on agriculture to feed and to improve livelihoods, there is no more important agenda for our Prime Minister and the government to improve farmers' resilience. And this is the biggest challenge facing not only India but all the developing countries, where farmer income is hugely impacted because of so many factors, including volatility of crop prices. As we all know, the weather patterns are becoming more and more unpredictable, and the livelihood is really important. Also, one of the biggest challenges in a country like India is food inflation. So all these factors are hugely negatively impacting farmer resilience. And it's great to have the Honorable Minister and so many people here. In the pre-meeting, I was really happy to see people from the oil industry and food industry and so many other technology companies here, who are here to solve this problem or to address some of the challenges being faced by agriculture and farmers. Today, the world over, if we expect farmers to help in sustainability and bring sustainable technology, they need to have their own financials secured. Otherwise, it's very difficult to encourage them or motivate them to meet the needs of the world, which is really sustainable agriculture. And at UPL, we have a number of initiatives which are driving sustainability in agriculture. Sir, in about 15 years ago, UPL started on this journey to help farmers with resilience. And we have a number of initiatives, including crop insurance. One of the most important factors is, and the government is also partnering with us on that, where we are able to give instant insurance to farmers when there is a major weather impact. Also, with the policies of ethanol, bio-CNG, these major initiatives will also drive huge stability in farmer income. It is it's not uncommon that when the farmers have their best yield, the prices are the lowest. And this drives huge stress and uncertainty for farmers. I think with the government policies on minimum support price, the ethanol policy, the bio-CNG policy, these are going to drive a transformation in terms of technology, not only in agriculture production, but also in so many other ways, biotechnology, soil preservation, and so many other subjects which are so critical for
improving agriculture productivity. Today, the government recently announced the oil seed commission, which is such an important area. Today, India imports $20 billion of oil, and I think the government's initiative to drive towards self-sufficiency is also going to drive huge income benefits for the farmers, because I can imagine the government is going to incentivize oilseed production. And I know in my interactions with the government how important that subject is, and at such a senior level the government is taking so much interest in creating food security and independence on edible oil. There are so many technologies which are available within ICR complex, and at UPL we have partnered with them on so many instances, and I believe that this motivation and platforms like this will drive, and discussions like this will drive the cooperation between the private sector, the government research organization, which every time I interact personally with them are doing incredible work, whether it is sugarcane genetics or biotech or GM technologies or any other initiatives. There is a huge amount of research, and I believe that the government is ready and the institutes are ready to partner with private sectors. The whole requirement today, one of the challenges for farmers is yield, and I believe that with technology and partnership and with a steady price and predictable pricing and some kind of insurance for the impact of weather, farmers will be willing to invest to increase productivity. Today, one of the challenges in India is we are one of the largest producers. We produce almost $500 billion of food. Our yields can improve dramatically. So technology on seeds, technology on soil health, technology on post-harvest production, food wastage, all these aspects with the current policies of biofuel, bio-CNG, and all the other initiatives driving this transformation are going to really help transition Indian agriculture to one of the best levels, highest levels of productivity going forward. With that, I hand over back. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Shroff. Next, we will hear from Mr. N.K. Agarwal, Co-Chairman, Agri Inputs and Farming Practice Council, ASSOCHAM, and Chairman, Crystal Crop Protection Limited. Can we all please welcome him on the dais? Very good morning to all of you. Namaskar. मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, मंत्री, राज्य मंत्री भारत सरकार, मेरे इंडस्ट्री कोलीग जय श्रॉफ जी, रेस्पेक्टेबल श्री डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी, and other dignitaries sitting on the dais, all the delegates, including all eminent scientists, industry colleagues, and maybe some students are here to know more about the agriculture. So I have to come out with some industry perspective. So मैं बहुत शॉर्ट में आपको बात करूँगा कि टाइम लिमिट है, मंत्री जी को जाना है, तो 5-7 मिनट में अपनी बात रखूँगा। वैसे तो भारत सरकार फार्मर्स के लिए बहुत काम कर रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी नया एक स्लोगन आ गया है, फूड सिक्योरिटी टू फ्यूल सिक्योरिटी, ये अभी एक नया और कॉन्सेप्ट आ गया फ्यूल सिक्योरिटी का। सो दोनों चैलेंजेस हमारे सामने आ गए हैं। फूड सिक्योरिटी तो अपने आप में एक चैलेंज था ही, और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी फ्यूल्स के ऊपर भी, क्योंकि फ्यूल सारा इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर भी एक सब्जेक्ट आ गया है कि वो भी एग्रीकल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फ्यूल सिक्योरिटी भी कुछ कर सकें।
मेरा ज़्यादा फोकस तो इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव पे केवल एग्री इनपुट जो इंडस्ट्री है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड प्रोडक्शन पे और फूड की सस्टेनेबिलिटी पे। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप कहेंगे तो पिछले 10 सालों में जो काम किया है, क्रेडिबल जो काम किया है गवर्नमेंट ने, स्टार्टिंग फ्रॉम चाहे वो फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प है या डिफरेंट स्कीम्स के अंदर हमारी, चाहे वो इंश्योरेंस की है, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने दी हैं और टोटल फोकस इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एग्रीकल्चर पे है और एग्रीकल्चर हमारा सस्टेन कैसे करे, फार्मर्स खेती से बाहर ना जाएं, उसके ऊपर फोकस है। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो एग्रीकल्चर का है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से लैंड शॉर्टेज है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उस हिसाब से एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, मुझे लगता है कि उसमें हमारे साइंटिस्ट, देश के अंदर लगभग 170 से ज़्यादा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो गवर्नमेंट और जो एग्री इनपुट के स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम करेंगे, मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है जो क्लाइमेट से भी रिलेटेड है, कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ जाती है, उसके भी चैलेंजेस हैं। तो इस सारे के अंदर हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच में अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम जो देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो विश्व की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको हम अचीव कर सकते हैं। हमारे जो पर एकड़ की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक चाइना और जापान, उनसे आधे के करीब है। तो इसको इंक्रीज़ करना है तो इसमें टेक्नोलॉजी लगेगी, एग्री इनपुट जो इंडस्ट्री है उसका बड़ा भारी रोल हो सकता है। तो अभी जय भाई ने भी कहा है कि पीपीपी मॉडल पे काम करने की आवश्यकता है, तो क्यों न गवर्नमेंट, रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो और एग्री इनपुट की इंडस्ट्री मिलकर के एक मंच पे आकर के अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारा गोल है फूड सेफ्टी टू फ्यूल सेफ्टी, वो हम अचीव कर पाएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जैसे मेरी अपनी जो क्रिस्टल ग्रुप की इंडस्ट्री है वो हमने पहले शुरू किया था एग्रो केमिकल्स, लेकिन व्हेन आई ऑब्जर्व्ड कि फार्मर, इलिटरेट फार्मर को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, देन वी डिसाइडेड टू प्रोवाइड complete solution from sowing to harvest, and that is why we are providing the hybrid seeds, not only the agrochemicals with environment safe molecules भी हम सप्लाई वो करते हैं, लेकिन सीड्स भी हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया, क्योंकि फार्मर्स को सीड्स की ज़्यादा समझ नहीं है तो अच्छा सीड्स हम दे पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो बहुत बड़ा गैप था वो फार्म मैकेनाइजेशन का था। पूरे देश के अंदर अभी तक फार्म मैकेनाइजेशन पर कोई काम नहीं हुआ था पिछले 8-10 सालों से। हालांकि इनिशिएट तो हमारे जय भाई ने किया कि स्प्रे टेक्नोलॉजी को हमने इम्प्रूव किया, लेकिन अभी इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम लोगों ने भी कोशिश की है बेस्ट टेक्नोलॉजी फार्म मैकेनाइजेशन को हम फार्मर को देंगे तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फूड सस्टेनेबिलिटी भी होगी, फूड सेफ्टी भी होगी और फ्यूल सेफ्टी भी होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके ऊपर आने वाले अभी कुछ हमारे सेशंस होंगे, उस पर आप डिस्कशंस करेंगे और उसको कुछ कंक्लूड करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ से आज के इस पूरे कंप्लीट जो कॉन्क्लेव है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें से कुछ आउटपुट निकलेगा और गवर्नमेंट को हम उनके सामने रखेंगे तो फिर ये वे फॉरवर्ड लेके जा सकेंगे। इतनी बात मुझे कहनी थी। Thank you very much. Thank you, Mr. Agarwal, for sharing your valuable perspective with us. Please welcome our next speaker, Mr. Amit Vatsayan, Partner and Leader, Social and Skills Sector, Ernst & Young LLP India.
आप सबको मेरा नमस्कार। माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग श्री रामनाथ ठाकुर जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, एग्रीकल्चर कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, श्री फ्रैंकलिन, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, श्री जयदेव श्रॉफ जी, Chairman Agri Input and Farming Practice Council ASSOCHAM and Global CEO UPL Limited, Shri N.K. Agarwal Sahab, Co-Chairperson Agri Input and Farming Council of ASSOCHAM and Crystal Group Protection Limited Chairman, ladies and gentlemen, it's my pleasure to be here and to talk about this very important topic, which is, I would say, very critical for of course security of the farmers, but also the security of India as a country. मैं अगर मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करूं तो वो उचित होगा? हिंदी इंग्लिश इज़ फाइन? अच्छा जी, थैंक यू। तो मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना चाहूँगा जिसमें मैं बात करूँगा एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, एक फार्मर पर्सपेक्टिव और एक सरकार की तरफ से, और मैं आपको 2-3 पॉइंट्स छोड़ के जाऊंगा जो मुझे लगता है जिसके ऊपर हमें अधिक विवेचना करनी चाहिए। तो पहली बात तो जैसा कि जय साहब ने भी कहा कि लगभग जो कृषि है वो 18% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और लगभग 40% लोग इस पर डायरेक्टली आधारित हैं और लगभग 60% लोग इनडायरेक्टली आधारित हैं। इसके साथ आज के दिन में जो भारत सरकार ने और हमारे किसानों ने मिलकर और जो एकेडमिया और इंडस्ट्री ने मिलकर कई सारी कोशिशें की हैं और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसके साथ कुछ मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहूँगा। पहला कि जो हमारा इनपुट का कॉस्ट है वो बढ़ रहा है और अक्रॉस इंडिया हम देख रहे हैं कि वो एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर रहा है हमारे कृषकों के ऊपर। दूसरी बात कि 42% जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं वो 85% इस्तेमाल करती हैं फर्टिलाइज़र, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इनपुट का यूज़ काफ़ी कम है। तीसरी बात है कि लगभग 47% जो हमारा एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हुआ है, लेकिन अगर आप देखिए एक कंट्री जैसे ब्राज़ील है वहाँ पे 60% है और अगर हम 75% है और अगर हम चाइना देखें तो वहाँ पे 60% है। तो साथ में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण भी अगर हम देखें तो जो विविधताएं आ रही हैं वृष्टि में, बारिश में, और जो विविधताएं आ रही हैं जो उष्ण ऊर्जा मिल रही है उससे, मतलब गर्म जो वेरिएशन इन टेम्परेचर विच इज़ हैपनिंग, तो इसके कारण लगभग जो राइस और वीट है उसमें 20% की कमी की बात की जा रही है। और साथ में मैं थोड़ा सीड पे भी बोलना चाहूँगा कि लगभग हमारे जो 30% से अधिक जो सीड हैं वो क्वालिटी उनकी लो है। अगर हम इन सबों को सोचें कि अगर इन सारी जगहों पे गुणवत्ताओं को बढ़ाया जाए तो हम देख सकते हैं कि भारत काफ़ी आगे प्रशस्त मार्ग पे जा सकता है कृषि के क्षेत्र में। साथ में तो इसमें बदलाव कैसे आएगा? तो पहली तो बात यह है कि अगर आज के समय हम देखें तो एक तो यह है कि जो टेक्नोलॉजी का जो बढ़ रही है, चाहे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें या हम नॉन डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रास्ता है जो कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए एंड रेजिलियंस पाने के लिए उचित होगा। और एक अनुमान है कि लगभग 30% जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है अगर हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एग्रीटेक का अडॉप्शन अगर अपना इम्प्रूव करें। इसके साथ जो हमारे किसान हैं उनको क्वालिटी सीड के लिए, उनको इनपुट के लिए और उनको नई सीड टेक्नोलॉजी का अगर एक्सेस दिया जाए जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, तो ये कई हद तक इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। अगर आज के समय पे अगर हम इंडस्ट्री साइड देखें तो जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसमें इंडस्ट्री ने, स्टार्टअप ने कई हद तक कंट्रीब्यूट किया है। एक मैं आपको फिगर बताना चाहूँगा कि
अभी भारत में लगभग 3000 एग्री टेक स्टार्टअप्स हैं, जिसमें लगभग 1300 इमर्जिंग और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ में हैं जो AI, मशीन लर्निंग और IoT पे काम कर रहे हैं। हमारा अनुमान है कि अगर एग्री टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होता है अलग अलग एरिया में, तो लगभग 62 से 76 बिलियन $, एक एनुअल बेसिस पे ऐड हो सकता है इस इकोनॉमी में, और उसमें लगभग जो कृषक हैं उनको 50% फ़ायदा हो सकता है। साथ में अगर हम देखें कि अगर जो हमारे वैल्यू क्रिएशन की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो 75 से 91 मिलियन फार्मर्स को इससे फ़ायदा हो सकता है, लगभग 40% तक। तो लेकिन इस दिशा में अगर मैं इन सारी चीज़ों को जोड़ूं, जो चैलेंजेस की बात है, जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो हम इसको आगे कैसे बढ़ेंगे इसमें। तो मैं इस बात में भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कई सारी पॉलिसी लेवल पे इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि मेरे से पहले भी स्पीकर्स ने कहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, बायोफ्यूल पे, सीड के ऊपर कई सारे पॉलिसी इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं। इसके साथ 2 और भी क्षेत्र हैं जिन पे मैं फोकस करना चाहूँगा। पहला है जो हमारे एग्री स्टार्टअप है उनको सपोर्ट करना, और दूसरा है जो बहुत बड़ा इशू है इन्फॉर्मेशन असिमेट्री का। हम किस तरीके से जो हमारे फार्मर्स हैं क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन पता लगे सारे स्टेक होल्डर्स को, ताकि इसकी प्लानिंग बेहतर हो सके। ये अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें और काम हो सकता है। और मैं आपको बता के मुझे काफ़ी हर्ष प्रतीत हो रहा है कि भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की स्थापना करी है, जिसके भीतर में इनिशिएटिव जैसे कि एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट और विस्तार, इन 3 इनिशिएटिव को लाया जा रहा है, जिसमें कोशिश ये होगी कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री को जो हमारे पूरे इकोसिस्टम है उसको उस पे रिस्पॉन्स दिया जा सके। साथ में RKVY रफ्तार और एग्री श्योर फंड जो भारत सरकार फिर से लेके आई है, जिसका फोकस है कि ये इकोसिस्टम जो प्लेयर है, वैल्यू चेन है, उसमें सपोर्ट करे और ख़ास करके स्टार्टअप को एक्सेलरेट करने में मदद करे। और स्पेसिफिक इनिशिएटिव जैसे कि नैनो ड्रोन दीदी, जिसमें फोकस है कि ड्रोन के ऊपर कैसे नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हों ताकि नई सर्विसेज लाई जा सकें, जो कि खास करके इनपुट सर्विसेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। अगर इस क्षेत्र को हमें और आगे बढ़ाना है, तो सच्चाई ये है कि ये जितने इनिशिएटिव हो रहे हैं, अभी वी आर बेयरली स्क्रैचिंग द सरफेस। देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो एकेडेमिया, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट साथ में जुड़ के काम करना पड़ेगा। और मैं जो आप 3 बिंदु जिनके साथ मैं अपना कंक्लूड करना चाहूँगा, पहला तो ये है कि एक रोबस्ट इंक्यूबेशन इकोसिस्टम की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एस्टैब्लिश कंपनी हैं जो नई टेक्नोलॉजी ट्राई कर रही हैं, हमारे यहाँ स्टार्टअप्स हैं जो नई टेक्नोलॉजी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कई बार उनको जो कॉस्ट ऑफ डेटा होता है, कॉस्ट ऑफ इंगेजमेंट होता है, वो प्रोहिबिटिव है। उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें एक पद्धति कहलाती है, अगर इफ़ यू हैव टू फेल यू शुड फेल फास्ट, एंड इफ़ यू हैव टू सक्सीड यू शुड बी एबल टू गेट सपोर्ट फास्ट एज यू आर एबल टू प्रोटोटाइप। तो जो हमारा जो एग्री टेक है, इसके लिए मेरा सजेशन है, मैं डिजिटल साइट से बोरो कर रहा हूँ, सैंड बॉक्सेस। सैंड बॉक्सेस कहने का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ डिजिटल में लागू हो। सैंड बॉक्सेस मतलब जहाँ पे फील्ड पे डेमोन्स्ट्रेशन करके, वेरिफिकेशन करके, ICR के साथ, KVK के साथ, ऐसे यूज़ के साथ इसको जो भी हमारे नई टेक्नोलॉजी हैं उनको एक्सेलरेट और अडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दूसरा बिंदु था। इसके ऊपर कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम स्टार्ट किया है, ICR ने भी स्टार्ट किया है, और भी आगे हो सकता है। जो तीसरा जो मेरा सजेशन है वो है कि ये जो पूरा डिजिटल सिस्टम है, इसके बारे में हमें अधिक से अधिक बात करनी चाहिए, क्योंकि ये रिवोल्यूशनाइज कर सकता है हमारे पूरे सेक्टर को। आज के दिन में अगर कोई किसान मेज़ लगा रहा है, आपको नॉर्मल सिस्टम से 2 महीने बाद पता चलता है कि मेज़ लगा रहा है। वो 2 महीने का जो आपको लैग टाइम है, इट्स क्रिटिकल। Whether we are talking about price fixing, whether we are talking about looking at how to accelerate export, or whether we are talking about biofuel. Last but not the least, कि ये जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं,
इनको कमर्शलाइज करने के लिए, जैसा आपने पहले इस बारे में एक रेफरेंस दिया कि जैसे आईसीआर के भीतर में कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके पास कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम उनको कमर्शलाइज करने में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं ताकि वो ऐसा ना हो कि वो 10,000 फार्मर के पास जाके रह जाएं, वो कैसे करोड़ों फार्मर्स के पास पहुँचे, वो कमर्शलाइज होके, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन बिंदुओं के साथ मैं आज के कॉन्फ्रेंस के लिए मेरा विश्वास है कि आज डिस्कशन बहुत अच्छे होने वाले हैं और कई सारे इन बिंदुओं पे हम गहराई से जाएंगे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ईवाई एक नॉलेज पार्टनर के रूप में एसोचैम के साथ जुड़ी हुई है और इन कई सारी इनिशिएटिव में भारत सरकार के साथ, राज्य सरकारों के साथ और कई सारे स्टार्टअप्स और कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का फिर से धन्यवाद एंड आई विश द कॉन्फ्रेंस ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Thank you, Mr. Vatsayan, for your engaging thoughts. Now it is my pleasure to invite Mr. Franklin L. Kobang, Joint Secretary, NRM, RFS, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, to address the August gathering. Let's all together welcome him on the dais. राजकक्षा की माननीय कृषि मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर साहब, my colleague in the ministry, Dr. P.K. Singh, Commissioner Agriculture, Amit from EY, Agrawal ji, Shroff ji from Ashocham, distinguished guests present here, ladies and gentlemen. It's a pleasure for me to have this opportunity to address this August gathering this morning. And first of all, I would like to congratulate Assocham for initiating this very, very important discussion on climate resilient farming with the theme food security to fuel security. We all know that climate change is real, climate change is coming. It has started impacting different sectors. Agriculture is no exception. As far as agriculture is concerned, agriculture is a sector that is very, very vulnerable to climate change. And on one side, and on the other side, agriculture also contributes to climate change. If you look at the country's emission scenario, about 14% of the country's emission, it is coming from agriculture sector. So to address these, the Ministry of Agriculture has long since been taking steps to address the impact of climate change in agriculture. As we all know, we have the National Action Plan on Climate Change initiated in 2008 under the chairmanship of our Honorable Prime Minister. And under the aegis of the NAPCC, we launched National Mission on Sustainable Agriculture in 2010. Since then, as far as agriculture sector is concerned, we realign all our schemes and programs to have that element of sustainability, to have that elements of resilience. We have recently initiated a framework on climate resilient agriculture, which will be basically implemented across the country. If we look at the provisions of the National Mission on Sustainable Agriculture, we have identified all important areas wherein we can adopt climate actions, adaptation mitigation measures, we call it adaptations and mitigations technically, and we promote them to the schemes and programs in our sector. It includes natural farming, organic farming, agroforestry, efficient use of resources, and we have made quite a headway. If we look at micro irrigation, for example, we have covered close to 17 million hectare across the country now, out of the 140 million hectare of the net zone area. And if we talk about greening the agricultural ecosystem through agroforestry, our nodal institutions in the ministry that looks after agroforestry says that we have 28 million hectare under the coverage of agroforestry in the country.
if we talk about the soil health, we have distributed over 23 crore of soil health card, though the applications, the utility of the soil health card, we still have to improve upon that. But in terms of numbers of coverage of the soil health card, I think we have really achieved, big number. So the result is that we can see that we are quite comfortable as far as production is concerned, productivity is concerned. We are comfortable with our food security now. If we look at the food grain productions of the past, whatever, 5 years, 10 years, we have a steady increase in the productions of food grain. The horticulture side, in fact, productions also have overtaken the food grain production in the country. So the steps which is being taken by the government has really, impacted upon the food productions, achieving food security in the country. But it is not that we have done enough. There is a lot more to be done. Projection says that by 2050, we need to increase our productions to about 70% in order to meet the demand of food for the growing population, because the population is growing. So if we have to increase the production by 70% in the near future, coming to think of it, there may be just 2-3 ways of doing it. The first is that you will have to increase the area of production, which is very, very difficult owing to the pressure of population on land. Or you will have to increase the productivity, that is the per unit productions of food grain of the agricultural area, which is very, very challenging. I think that it is this situation that has led to the realization of the importance of diversifying agricultural produce. I think one important, very, very important step of diversification is the achieving efficient use of resources. I think it is exactly this principle that has led to the realization of the importance of circular economy in agriculture sector. We have circular economy being initiated by the government of India, which is spearheaded by Niti Aayog. Agriculture has been identified as one of the big potential area, because in agriculture, if we talk about circularity, I just have a figure which is put forth by EMF Foundations in 2016. Circularity in agriculture sector can generate benefits to the tune of about 4 lakh crore per annum, because we have agriculture waste generated annually to the tune of 800 million tons, which is even more than the the productions of the food grain and horticulture put together. So circular economy can help us in reducing 31% of emission in agriculture sector. We will be able to save 50% of water being used for irrigations by the practice of circularity, and we can achieve reduction in 71%, by 71%, the use of chemical fertilizers. And if we talk about biofuels, today's theme is about food security to fuel security. So if we talk about biofuels, which is linked to agriculture because the raw materials come from agriculture, we have biogas, ethanol, biodiesel, etc., etc. These can come from the agricultural waste. Out of the 8 million tons of agricultural waste, which I talked about anything between 150 to 200 million tons, they are being wasted simply. The farmers burn it, or it is wasted without any utility. So if we can just focus on the optimum and efficient utilizations of the resource that is there at our disposal, I think that the target of 20% blending of ethanol by 2030, which is put forth by Ministry of MNRE, or I saw in the paper today Gadkari ji talking about 15% blending of
ethanol with diesel also now. You know, these can be achieved only because the raw materials come from agriculture. So I think that by efficient, you know, management and utilizations of agricultural waste, we don't need to, you know, compromise on the productions of maize or other food grains or even sugarcane for the productions of ethanol or other biofuels. I think that is where industries can play a major role. We have to go for technology, logistics, transportation, storage, you know, locations, specific locations, because these biomass are, you know, located in a very spread out across the country basically. So we will have to have a strategic locations wherein we can set up the processing plant, and most importantly, market. Market is something that drives, you know, everything in the country. So if we can have created kind of market of the biofuels, that can be the result of the circularity. I think a lot can be achieved. And I think these are the points which we are going to deliberate upon in today's discussion. And I would like to congratulate once again ASSOCHAM for organizing this wonderful program. Thank you. Thank you, Mr. Kobang, for your enlightening words. It is an honor to invite on the days Dr. Praveen Kumar Singh, Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India, to deliver the keynote address. Can we please welcome him? थैंक यू मैडम। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय कृषि राज्य मंत्री महोदय रामनाथ ठाकुर जी, जयदेव श्रॉफ जी, एन.के. अग्रवाल जी, अमित जी, फ्रैंकलिन जी और सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव। साथियों, ये जो आज का टॉपिक रखा गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट रिजिलिएंट फार्मिंग सॉल्यूशंस, फूड सिक्योरिटी टू फ्यूल सिक्योरिटी न करके इसमें 2 कॉमा नो फुल स्टॉप की ज़रूरत है। फूड सिक्योरिटी, फॉडर सिक्योरिटी, फाइबर सिक्योरिटी एंड देन फ्यूल सिक्योरिटी, सभी आएगा, चारों एफ आने चाहिए। तो क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक हैं। G20 के बाद से हम लोग वन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उसमें जानवरों की हेल्थ की भी बात है। अभी एक दिन काफ़ी चर्चा है, फ्रैंकलिन जी भी उस चर्चा में शामिल थे, फॉडर ट्रैक्स बनाने की बात हो रही है, वहाँ से बायोमास का कई तरह का उपयोग है और वो फ्यूल सिक्योरिटी में जाएगा, कैसे जाएगा। तो हम लोग जब बात करते हैं कि फ्यूल सिक्योरिटी, तो उसके साथ साथ फॉडर भी इंक्लूड होता है। हर जगह जहाँ कहीं भी हम, चाहे मेज़ से साइलेज बनाने का हो, मेज़ से DDGS बनाने की बात हो, या फिर हम अपना जब अगर अभी कोई और क्रॉप आती है, शुगर केन है, शुगर केन का भी जो टॉप है या अंगोला होता है, इट इज़ ए वेरी गुड फॉडर। उसी तरह से अब और भी कोई नई क्रॉप, मिलेट्स आ रहे हैं, अगर फ्यूल के लिए आएंगे तो उससे फॉडर भी निकलना है। और फाइबर होगा तो उससे आपका फाइबर से आपके क्लॉथिंग का और जो इसका भी है वो भी डिमांड कई जगह ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय। तो इसको हम लोग फूड सिक्योरिटी के साथ साथ फूड, फॉडर, फ्यूल एंड फाइबर सिक्योरिटी सबको एक साथ लेके चलें तो हमें अच्छा होगा आगे का प्लान बनाने में। क्योंकि अभी लाइव स्टॉक सेंसस भी चल रहा है, जाहिर सी बात है कि अब पिछले लाइव स्टॉक सेंसस से 5 साल के बाद जब हो रहा है तो एनिमल पॉपुलेशन भी बढ़ी हुई दिखेगी, दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है सभी। तो हमें उन जानवरों की हेल्थ के भी और उनके स्वास्थ्य का भी, उनके लिए अच्छे वातावरण की बात भी, गौ सेवा और इसकी जो बात हो रही है उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि अच्छे से अच्छा हम फॉडर उन लोगों को भी प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे अब बात आती है कि जब फूड सिक्योरिटी की बात है तो और क्लाइमेट रिजिलियंस, तो एक नई विधा भी अभी शुरू हो गई है। क्योंकि हम हर बार हम बोलते हैं, कई बार लोग सुन भी चुके हैं इस चीज़ को, कि हम लोग की जो खेती है 20,000-25,000 साल से जो हो रही है वो प्रकृति, संस्कृति और विकृति के जो मूल सिद्धांत है उसी पे आधारित है। प्रकृति से जो कुछ रिसोर्सेज थे उसको प्रयोग करके हम अपनी संस्कृति के हिसाब से या वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से अपनी संस्कृति विकसित करते हैं। उसमें कौन सी खेती होगी, अगर वहाँ पे मिलेट की खेती हो सकती है तो उसी के हिसाब से हमारा फूड चेन बनती है, हमारा फूड का पूरा खाने पीने की व्यवस्था होती है। उसी तरह से जहाँ जो होता है उसके हिसाब से हम अपने
उसकी तैयारी करते हैं आगे के लिए, तो हमारी रिजिलियंस तो है उसमें पहले से, रिजिलियंस इज़ इन बिल्ट हम लोग की खेती में। अब उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ विकृतियाँ आती रहती हैं, कहीं डिजीज़ आउटब्रेक होगा, कहीं सॉइल हेल्थ ख़राब होगी, कहीं कुछ होगा, वाटर कंजर्वेशन की बात होगी, पानी बहुत वेस्ट हो रहा है उसकी बात होगी। इन सबको फिर से ठीक करने के लिए हमें वापस प्रकृति की ओर ही देखना पड़ता है। तो अब जब हम लोग इस साइंटिफिक एरा में हैं जहाँ पे कि हर चीज़ रिसर्च एंड R&D बेस्ड है, तो जब हम वापस प्रकृति की ओर देखते हैं तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं तब तक। अब जैसे जीन एडिटिंग आ गया, जीन माइनिंग आ गया, और उसके बाद फिर है सब प्रकृति से ही लेना है हमको, और उसके हिसाब से हमको क्लाइमेट रिजिलियंस की आगे किस्में जो हैं, किसी भी पौधों की किस्में जो हैं वो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर में चेंज कर सकती हैं। अगर हम क्लाइमेट रिजिलियंट वैराइटीज़ ले आते हैं तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट रिजिलियंस अचीव करने में हमें आसानी हो जाएगी। अगर हम इंसेक्ट टॉलरेंट वैरायटी ले आते हैं तो जाहिर सी बात है इंसेक्टिसाइड का उपयोग कम होने लगता है। अगर हम डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी ले आते हैं तो डिजीज़ आउटब्रेक नहीं होगा, तो फंजीसाइड्स का प्रयोग कम होगा। तो ये सारा एक दूसरे से लिंक है। तो हमारा सारा जो शुरुआत है वो इसी पे है, इसी सिद्धांत पे, प्रकृति है, संस्कृति है, विकृति है उसमें। तो साथियों, इसी के हिसाब से अब देखा जाए तो भारत सरकार भी जितनी योजनाएं बनाती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक, इस सिद्धांत के 3 जो अंग हैं उनमें किसी न किसी एक को हम लोग हिट करने की कोशिश करते हैं या उसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, पूरा मंत्रालय है बहुत बड़ा जो कि हमें कुछ भी इधर उधर नहीं करने देता है कि हाँ GAC का क्लियरेंस लो, कहीं प्रकृति से आप छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हो, कहीं पेड़ तो नहीं काट दे रहे हो, कहीं पे एरिया तो नहीं बढ़ा दे रहे हो, मतलब सब चीज़ में उनका एक प्रकृति का कंजर्वेशन, सॉयल कंजर्वेशन की जितनी सॉयल हेल्थ कार्ड हो, ये सब उसी दिशा में एक पहल है कि प्रकृति हमारी संतुलित रहे, आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको एक हम अच्छा एक माहौल दे के जाएँ या एक अच्छा उत्पादन का दे के जाएँ, ताकि वह भी जिस तरीके से हम पहले से 20,000 साल से खेती करते आए हैं आगे भी खेती इसी तरीके से अनवरत यथावत चलती रहे। दूसरा है आपका जो संस्कृतियाँ, तो इसमें तो पूरा R&D लगा हुआ है। संस्कृति के हिसाब से ही सारा R&D जो है, किस्में हैं, कहीं बासमती की किस्में हैं तो वो भी उनको पुलाव बनाना है तो उनके लिए बासमती किस्में चाहिए, किसी को दूसरा खाना खाना है तो उनके लिए अलग तरह की धान की वैरायटी चाहिए, गेहूं की वैरायटी, सूजी की अलग, ड्यूरम, एस्टिवम, डाइकोकम, सब तरह के, सबके लिए हम लोग वैराइटल डेवलपमेंट का कार्यक्रम, इवन जानवरों के लिए भी हमारी वैरायटी डेवलपमेंट ये चल ही रहा है। और इसी से रिजिलियंट है हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। पिछले 1952 से अगर देखें, 51 से जब से रिकॉर्ड बन रहा है तब से कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है। तो वो इसीलिए है कि हमारा R&D जो है इट इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग दी वॉट एवर क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग सॉल्यूशंस आर टू बी मेड। उस समय की जो नीड थी, फूड सिक्योरिटी की नीड थी, ज़्यादा उपज वाली वैरायटीज़ दी गई, उनमें ठीक है बीमारियां आई, उसके लिए खाद का प्रयोग बढ़ा, उसका हुआ। अब तीसरा जब आ गया है, जब लास्ट जो विकृतियां हैं, तो उसके लिए आप अब फिर से देखिए तो पूरे विश्व में, केवल यही नहीं पूरे विश्व में जो है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका जो कंसेप्ट फिर से आ रहा है, ये उन विकृतियों के को ही दूर करने का एक, क्योंकि अब हम वन हेल्थ की बात करने लगे, आदमी की ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्रकृति की हेल्थ, सॉइल की हेल्थ, सभी की हेल्थ की जब बात होने लगी तो फिर ये है कि कहाँ से होगा, तो उसका एक उपाय लोगों को समझ। यूरोप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा, उसी तरीके से इंडिया में नेचुरल फार्मिंग का भी प्रमोशन चल रहा है। इवन प्रधानमंत्री जी कहते हैं मिशन लाइफ पर लिविंग फॉर इन्वायरमेंट। लिविंग फॉर इन्वायरमेंट मतलब हम प्रकृति के हिसाब से जिएं। हमें अपने जो भी आगे आज आप लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग सॉल्यूशन सबको हमको ध्यान में रख के किस तरीके से करना है। माननीय मंत्री जी भी अभी इस पर आपको हम लोग से बात करेंगे, बताएंगे कि क्या सोच भारत सरकार की इस पे चल रही है। लेकिन होना यही है कि हमें कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए बाहर के जो एडेड कॉस्टली इनपुट्स हैं उसका प्रयोग कम करना है, और साथ में अपनी जो खेती है उसका न उत्पादकता कम हो, न तो उत्पादन कम हो,
और फूड सिक्योरिटी में फूड जो हैबिट्स हैं हमारी, हमें डिमांड बेस्ड अब ज़रूरत पड़ रही है। अब भाई इथेनॉल बनाना है तो कौन सी किस्में चाहिए, हमें डिमांड के हिसाब से अब किस्मों का चयन और क्षेत्र का चयन, कहाँ पे क्या खेती हो सकती है, उस दिशा में भी अब हम लोग बढ़ने लगे हैं। जो कि अभी तक प्रोडक्शन ड्रिवन होता था कि प्रोडक्शन बढ़ा दो, राइस वेट बढ़ता जाता है, बाकी उससे आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो रही कि नहीं हो रही उस पर कोई ध्यान अब तक नहीं होता था। लेकिन अब बायो फोर्टिफाइड वैराइटीज़ भी आने लगी हैं। हर तरीके से जो है डिमांड ड्रिवन, हम अगर अच्छा खाना खाते हैं, खाना चाहते हैं, मिलेट्स का भी प्रयोग बढ़ रहा है, सब चीज़, मतलब ये सारा धीरे धीरे चेंजेस जो हैं, ये जो हम चाहते हैं कि हमारी जो आगे हमारी जो पॉपुलेशन आने वाली है उसको अच्छा खाना मिले, भरपूर खाना मिले। इसीलिए अभी एक दिन और हम ये सुने थे, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्विनावधीत मस्तु का जो सिद्धांत है, बचपन से स्कूलों में प्रेयर में पढ़ाया जाता है, सभी का पोषण हो, सभी सुरक्षित हों, सब उसी की ऊर्जा से चलें और हमारा ज्ञान जो है सार्थक हो, ये जो सोच है इसी को आगे बढ़ाना है। शायद यही क्लाइमेट रिजिलिएंट फार्मिंग सॉल्यूशंस देने में हमें मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Singh, for your valuable address. With due respect, I now request our respected chief guests to kindly release the knowledge paper on agri-tech adoption for climate resilient agriculture in India. And this is being prepared by ISOCHAM in association with Ernst & Young LLP India. And with this, ladies and gentlemen, we release the knowledge paper. Many congratulations to ASSOCHAM and Ernst & Young LLP India. Kindly keep the applause going. Requesting all the dignitaries to please come together for a group photograph with the knowledge paper in their hands. Thank you very much for doing the honors. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we are deeply honored to have with us today Mr. Ramnath Thakur, Honorable Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. And let's all together welcome him on the dais with a thunderous round of applause. आदरणीय मंच पर विराजमान अग्रवाल साहब, श्रद्धेय जयदेव जी, श्रद्धेय अजीत जी, श्रद्धेय पीके सिंह जी, एग्रीकल्चर के कमिश्नर, फ्रैंकलिन जी, इस हॉल में भारत के किसानों के हित के बात सोचने वाले सभी प्रबुद्धगण, मीडिया के कर्मीगण, छायाकार बंधुओं, शोधकर्ताओं, सबसे पहले मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूं कि मेरे जैसे एक साधारण आदमी को आपने बड़े विषय पर, एग्रीकल्चर के बड़े विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने देश की किसानों की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैंने विद्वान वक्ताओं से अच्छी अच्छी बातें सुनी, किसानों के हित के लिए, जनता के लिए, नौजवानों के लिए। मैं प्रभावित हुआ। सबसे पहले मैं आज पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब
अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है। उनके चरणों में श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाता हूँ। और उद्योग जगत के बहुत बड़े उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा के प्रति भी, जो अभी 2-3 रोज पहले उनकी मृत्यु हुई है, उनके चरणों में भी मैं श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाता हूँ। इन महान विभूतियों ने जो भारतवर्ष के लिए उनके मन में जो सोच, जो विचार, जो वेदना भारतवर्ष के प्रति जो थी, उस वेदना को हम आज जो आप सभी दिन भर में विचार विमर्श करेंगे, उस वेदना को कैसे मिटावें, इस पर निश्चित रूप से आप विचार करने का काम करेंगे। अभी जयदेव साहब बता रहे थे, मैं तो नहीं जानता था, अभी 1 महीने पहले मैं ब्राज़ील गया था। ये बता रहे थे जयदेव साहब कि हमारा 80,000 एकड़ मैं वहाँ खेती करता हूँ और ट्रैक्टर से करता हूँ। मैं गया था जयदेव साहब, देखा, समझा, जिंदगी में पहली बार विदेश गया था। तो वहां आरी मैंने नहीं देखा, खेत का जो आरी होता है वहां नहीं देखा मैंने, लेकिन हिंदुस्तान में तो आरी है, छोटे छोटे आरी हैं। इसको कैसे मिटाने का काम करेंगे, आज निश्चित रूप से उस पर विचार करने का आप काम करेंगे। वहां सुना कि हवाई जहाज से खाद छीटे जाते हैं, स्वाभाविक है। यहां तो आदमी हाथ से छींटता है। यहां हाथ से छींटता है तो किसान का भी स्वास्थ्य खराब और जमीन का भी स्वास्थ्य खराब। तो आज जो आप बैठेंगे मेरे जाने के बाद, जो गहन विषय पर विचार करेंगे, इस चीज पर भी विचार करेंगे कि हम किसान, भारतवर्ष का किसान कैसे स्वस्थ रहे और यहाँ की जमीन, उसका भी स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इस पर निश्चित रूप से सोचने और विचारने का काम करेंगे। अभी 2-3 वक्ताओं से सुना क्लाइमेट चेंज, तो 20-25 वर्ष पहले अभी आसिन में हम लोग स्वेटर या गर्म चादर ओढ़ते थे, लेकिन आज नहीं ओढ़ रहे हैं। अभी क्या कारण है? देश बहुत प्रगति किया, आगे बढ़ा, तब भी हम क्लाइमेट चेंज पर विषय पर बातचीत कर रहे हैं। क्यों, कैसे, किस लिए, किस कारण से, इस पर निश्चित रूप से आप विचार करने का काम करेंगे। मैं ज्यादा अन्य विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं, हम व्यवहारिक विषय पर लाना चाहते हैं। 2-3 बातें मेरे मन में जो है, उस बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। पवन बाबू, 11 अगस्त को आप रहे होंगे,
प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था। 3 पॉइंट बनाए गए थे। एक पॉइंट था बाजरे की खेती को देखना, एक पॉइंट था कम पानी में धान का उपार्जन, और एक पॉइंट था बागवानी, फल फूल पौधा का था। 15-15 मिनट का था एक पॉइंट पर, लेकिन 35 मिनट उन्होंने बिताया बाजरे की खेती में। 110 रोजों में जो बाजरे की खेती होती है, उसको 70 रोज में हम कैसे बाजरे की खेती का उपजा करें, इस पर विस्तृत वहाँ वैज्ञानिक भी थे, किसान भी थे, और पॉलिटिकल आदमी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। तो वहाँ वैज्ञानिकों और किसानों से जो बातचीत हुई, तो वो ये पाया गया कि 110 रोज को घटाकर हम 70 रोज में इसको उपजाएंगे। धान की खेती पॉइंट पर आए, जहां मैं था, जहां आप भी थे। उसमें हुआ कि जहां 100% पानी लगता है धान उपजाने में, उसमें 70% पर हम कैसे उपजावे। तो ये वैज्ञानिक और किसान की सहमति से हुआ कि 70% में हम धान उपजा लें। वर्षा हो रही थी। हम इस विषय को इसलिए रखना चाहते हैं कि 2 महीने हो गए, 2 महीने से अधिक हो गए। इस पर क्या शोध हुआ, इसमें प्रैक्टिकल आपने क्या किया, इसमें बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, उस पर विस्तार से विचार हुआ अथवा नहीं हुआ। वैज्ञानिक अपने विचार को जो वहाँ रखा, उससे नीचे आए, उसमें फिर सोचने की उन्होंने समय लिया अथवा नहीं लिया। इस विषय पर भी सोचना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आखिर 75 वर्ष हो गए इस देश को आजादी हुए। जनसंख्या भी बढ़ा। हम लोग कितने दिन ये सेमिनार करते रहेंगे। नई चीज को लाने के लिए सोच अच्छी चीज है, शोध अच्छा चीज है, लेकिन आम लोगों में प्रैक्टिकल के रूप में हम कब देखेंगे। इतने बड़े अच्छे हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, क्यों नहीं हम लोग किसी गांव में, देहात में जाकर के इस चीज को करें, जिससे किसान लाभान्वित हो, किसान देखे समझे, नौजवान देखे समझे और उसका उपयोग करे। इस विषय पर मुझको एक 125 या 26 दिन हुए। हम अब पब्लिकली नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री की सोच 11 अगस्त, उस विषय पर हम लोग नहीं सोच रहे। इस पर प्रैक्टिकल रूप से हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम मैं पहली बार इस होटल में आया हूं, पहली बार ऊंचाई पर आया, फिर नीचे आया।
हमको और ऊंचा जाना चाहिए, हम नीचे आ गए। देहातों में जाइए, देहात की मक्की की रोटी खाइए, चापाकल का पानी पीजिए, उस पानी में और इस बोतल के पानी में अंतर मिलेगा। वहां का नौजवान, वहां का किसान मजबूत रहता है, यहां तो एक धक्का मारेंगे टूट जाएगा, फूट। आप 80 एकड़ के मालिक हैं वहां, लेकिन हम 4 दिन सहे, नहीं खा पाए, नहीं खा पाए। इस सोच को हम सबों को आगे बढ़ाना चाहिए। और गरीब, निरीह भिक्षुक की एक कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। ये भूख जो है, इसको मिटाने की जरूरत है। हिंदुस्तान का किसान खुश रहेगा, हम सभी खुश रहेंगे। यहां का जमीन उपजाऊ रहेगा, हमको दूसरे देश से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। आपने एक दिलीप कुमार का सिनेमा देखा होगा, राम और श्याम में, या कौन गीत था, ये देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वो था ना, उस विचार को लेकर के चलिए। ये जितने आपने खर्च किए इस हॉल में, इस पेपर में, इस बोतल में, इस कप में, इस चाय में, तब ये सार्थक होंगे जब प्रैक्टिकल रूप में हम किसान को दे पाएं। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, एग्रीकल्चर विभाग की जो सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए खाद का आप उपयोग कीजिए, लेकिन उस खाद का उपयोग तभी कीजिए जब हमारे स्वास्थ्य को वो लाभ दे, जमीन के स्वास्थ्य को वो लाभ दे। मैं ज्यादा न कह करके मैं किसान का, इस वातावरण का, और किसान को फायदा हो और आपको भी फायदा हो, जिसके लिए आप बुलाए हैं, जिस काम के लिए बुलाए हैं, आपको भी फायदा होगा। नहीं फायदा होगा तो ये हॉल नहीं कर सकते। आपको भी फायदा हो, किसान को भी फायदा हो, वातावरण को भी फायदा हो और देश को भी फायदा हो। इन्हीं सोच के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। I now request Mr. Jaidev Shroff to present a token of gratitude, a token of respect to our respected chief guest.
A round of applause, ladies and gentlemen. Let's together thank him for sparing his valuable time. आज आप यहाँ समय निकाल कर आए हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. We look forward to your esteemed presence in the coming times also with us. Thank you very much. Dignitaries, you may please be seated. Thank you for doing the honors. As we move towards the conclusion of the inaugural session, I now invite Mr. D.S. Rajora, Assistant Secretary General ASSOCHAM, to propose the formal vote of thanks. Thank you. Honorable Minister, esteemed guests and distinguished participants, as we come to the close of the inaugural session of this conference, I have great pleasure in proposing a very hearty vote of thanks on behalf of ASSOCHAM to our chief guest and other dignitaries. Today's session has been a very informative from different perspectives of agriculture sector. We have heard leaders and experts who have inspired us with their vision for the future of agriculture in India, a future that embraces climate resilience, ensures food security, and paves the way for a cleaner, more sustainable energy solutions. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to our Chief Guest, Mr. Ramnath Thakur, Honorable Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Sir, your unwavering dedication to the welfare of farmers and your guidance in shaping agriculture policies have been deeply motivating. Your words today have reaffirmed our commitment to make farmers the cornerstone of nation's progress, and we sincerely thank you for your invaluable presence and insights. I would also like to extend my sincere thanks to Dr. P.K. Singh, Agriculture Commissioner. Sir, your expertise and valuable contribution to today's discussions have provided us a great clarity on the way forward for implementing sustainable agriculture practices. A special thanks to Mr. Franklin, Joint Secretary, Ministry of Agriculture. Sir, your views on circular economy are very important and really noteworthy. We deeply appreciate your presence and thoughtful inputs today. My sincere thanks to our knowledge partner, Mr. Amit Vasyan from EY. Your expertise and guidance have been instrumental in shaping the content of this conference. I would also like to express my deep appreciation and special thanks to Mr. Jaydev Saroff, Chairman, Agri Input and Farming Practices Council of ASSOCHAM and Global CEO UPL Limited. Sir, your leadership and continued advocacy for innovation in agriculture have inspired all of us today. A special thanks to Mr. N.K. Agarwal, Co-Chairman of the Agri Input and Farming Council ASSOCHAM and Chairman Crystal Crop Protection Limited. Sir, your efforts and dedication to promoting sustainable farming practices have been invaluable, and we look forward to your continued guidance as we move ahead. Lastly, I would like to express my sincere gratitude to all of you, our distinguished guests, industry leaders, participants, and friends from media for your active engagement and participation today. As we move forward with the rest of the sessions today, I am confident that the ideas and solutions that we have been shared will be resonate deeply and guide us towards implementing sustainable, innovative, and impactful solutions for our farmers and our agriculture sector. Thank you all once again, and we look forward to a productive day again. Thanks. Thank you, sir. Thank you very much. We once again thank our respected chief guests and esteemed dignitaries. Please come together for a group photograph. We once again thank our esteemed chief guests, dignitaries for their gracious presence. We request our delegates to please be a little patient. Let's please give us one more minute before we break for tea. Thank you once again. Thank you very much for your gracious presence, for your wholehearted support. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we'll take a 15 minutes tea break. We request you to reassemble in this hall at sharp 11:43 a.m. for our first technical session. Kindly reassemble at sharp 11:43 a.m. for our first technical session. Thank you very much. Enjoy the tea.